friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, if you follow my videos, we have already finished the series for UP Judicial Services pre-exams. जितने भी हमें एग्जाम पेपर्स मिले थे UP Judicial Services के प्री के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. And in this sequence, in today's video, we are going to discuss all the questions of Contract Act. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. So friends, let's move on to the question paper. Question 111. A proposal when accepted becomes a promise. A is the answer. और definition कहाँ provide की गई है ये? Section 2B of Contract Act. Next 112. Which of the following is a valid acceptance of a proposal? When an acceptance is made in ignorance of the proposal. Ignored है, proposal पता ही नहीं तो accept क्या करेगा? गलत है ये. फिर when acceptance is made in usual and reasonable manner but not in manner prescribed by proposer. प्रपोजर ने प्रिस्क्राइब किया है उसमें या फिर रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए. अगर प्रिस्क्राइब नहीं किया हो तो प्रिस्क्राइब किया तो यही रहेगा. फिर when an acceptance is made in the manner prescribed by the proposer, ये ठीक है. तो इसका आंसर क्या रहेगा? C is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 7 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. नेक्स्ट 13. An agreement made without free consent is voidable. B is the answer. ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 19 and 19A में. कंसेंट की डेफिनेशन कहाँ पर है? 13 में. फ्री कंसेंट की कहाँ पर है? 14 में. राइट. नेक्स्ट है 114. A contract through telephone is considered concluded at the place where acceptance is heard. In which of the following cases it was held? भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल. यही ध्यान से बताओ. क्या रिपीट क्वेश्चन नहीं है ये हम 7वां पेपर डिस्कस कर रहे हैं. उसको 4 बार हम कर चुके हैं डिस्कस ऑलरेडी. तो देख लो कितना रिपीट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट 115. विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. देखो अब क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है? कितनी बार कर लिया हमने ये भी. सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगीराम भंगूर. सी इज द आंसर. हेड ऑफ एक्शन किस पे है? ब्रीच पर, डैमेजेस पर. कार्बोलिक स्मोक बॉल जनरल ऑफर पर. ठीक है ना. नेक्स्ट 16. और देखो पूछ लिया ना आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस नॉट रिलेटेड टू द डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो कौन सा नहीं है इसमें? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस नोवेल्टी स्टोर वाला नहीं है. बी इसका आंसर रहेगा. एडलेबेक्सनडेल मद्रास डोमिनियन ऑफ इंडिया. ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं 2013 के पेपर में. 117. ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर void बट ऑल void एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल. बिल्कुल ठीक है. ओनली दोज एग्रीमेंट्स विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल आर नोन एज इलीगल एग्रीमेंट. ये बिल्कुल ठीक है. इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई. ए इज द आंसर. Next 118. Which of the following agreement is not void? A agreed to sell 200 tons of oil to B. ये void consideration कहाँ पर है इसमें? ये void हो गया. फिर है an agreement in a state of legal proceedings. बिल्कुल void है. Section कौन सा है? 28. फिर an agreement if restraint of marriage of any person. ये भी void है. कितने में? 26 में. A finds B's purse and gives to him. B promises to give A ₹100. ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया. एग्रीमेंट है. ये void नहीं होगा. डी इज द आंसर. बिकॉज उसने पास में कुछ कर दिया ना, कंसिडरेशन वहां से आ गया. ठीक है. तो डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 119. अब मैच करना है. नोवेशन कितने में है? 62 में. अनजस्ट एनरिचमेंट 70 में. पार्टी कॉम्बिनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 है. डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड बाय थ्रेट टू कॉज डेथ. इट इज सेक्शन 15. थ्रेट है ना वहां पे कोर्शन. मैच कर लो. देखो ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4, डी का हो गया 3. तो क्या बन गया? 2 1 4 3. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 120. A contingent contract depend on the happening of future uncertain event can be enforced when the event happens. A is the answer. बताओ क्या रिपीट क्वेश्चन है? 2012 का पेपर देख लो. डिट्टो क्वेश्चन है वहां पर. रिपीट क्वेश्चन. Next 121. When prior to the due date of performance the promisor absolutely refuses to perform the contract, it is known as
एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डी इसका आंसर रहेगा। Next 122, when the agent contracts without disclosing the name and existence of his principal, in such case, on knowing about the principal, the third party may file a suit against either agent or principal or both. See the answer. Ditto question, repeat question 2013 देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। सेक्शन कौन सा लगेगा? 231. All right. Next 123, A is indebted to B. He authorizes B to sell his house and to pay himself out of the sale proceeds the debt due to him. In the absence of express contract, A can revoke the agency, A cannot revoke, and agency is not terminated. Agency is not terminated by A's death. ठीक है ना? तो आंसर क्या रहेगा इसका? B and C, D इसका आंसर रहेगा। अब इसका सेक्शन जरा आप बताओ, पार्टिसिपेट करो यार, पेपर आने वाला है। बताओ जरा, लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट 124, प्लेज बाय सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल इज, दैट इज अनलॉफुल। भाई जब सेल हो चुका फिर तो कैसे कर देगा? अनलॉफुल है। प्लेज का प्रोविजन कहाँ पर है? प्लेज प्रोवाइड किया गया सेक्शन 172 में। नेक्स्ट 125, ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी, द कैरेज इज अनसेफ, बी इज नॉट अवेयर ऑफ द फॉल्ट इन कैरेज, ए इज इंजर्ड। अब क्या बी लायबल होगा? यस, बी इज लायबल, बिल्कुल होगा। उसकी ड्यूटी थी बताने की, वहां पर ड्यूटी टू डिस्क्लोज दी डिफेक्ट्स, ए इसका आंसर रहेगा, बी इज लायबल। फिर 126, a guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is invalid, invalid रहेगी, बी इसका आंसर है। सेक्शन कौन सा है ये? 143 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑलराइट। नेक्स्ट 127, which of the following section of Indian Contract Act embodies the rule of Clayton's case relating to appropriation of payments? That is section 59A is the answer, and डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है, तुम ए इसका आंसर रहेगा। Next 128, the rule initiated by section 65 of Indian Contract Act is applicable to agreement which are reduced void by mistake, failure of consideration, impossibility of performance of contract, all of the above. Next 129, assertion a minor contract is void, yes. Mortgage executed in favor of a minor is enforceable by him. ये भी ठीक है, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं हुई, इसकी 20 का आंसर रहेगा। केस कौन सा था माइनर में? मोहरी बीबी, याद है कि नहीं याद है? क्वेश्चन है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 4? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन भी है। अब रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेंस कैसे करेंगे ये कहाँ बताया गया? ये 5 में बताया गया, सेक्शन 5 में। तो आंसर क्या रहेगा इसका? डी। Next 62, B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. A says nothing. Here A signs are equivalent to speech. तो ये कहाँ पर प्रोवाइड किया गया? ये है फ्रॉड में इलस्ट्रेशन सी। सेक्शन कौन सा था? 17। A is the answer। 18 क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन। एंड 20, when both parties are mistake, agreement is void. Next 63, wagering agreement are void and not enforceable by law. B is the answer। जो भी एग्रीमेंट void होगा वो enforceable नहीं हो सकता। सेक्शन कौन सा वेजिंग एग्रीमेंट का? 30। मैंने बताया था CMTLUW, CMT लव 25, 26, 27, 28, 29, 30। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 64, ए प्रपोजल इज रिवोक्ड। कब रिवोक होगा? ओनली बाय डेथ एंड इंसैनिटी ऑफ अ प्रपोजल इटसेल्फ, या फिर बाय द डेथ एंड इंसैनिटी इफ द फैक्ट ऑफ डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर, या फिर बाय डेथ एंड इंसैनिटी ऑफ प्रपोजल इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ एंड इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। बिफोर एक्सेप्टेंस होगा तो फर्स्ट लाइन 1/3 है, फिर ये हाफ हो गई, फिर ये फुल स्टेटमेंट आ गई सी में। सी इसका आंसर रहेगा। Next 66, which of the following is the correct meaning of privity of contract principle? Parties must maintain the privity of contract. Main objective of the contract must be maintained. Only parties of the contract may sue on it. Only parties know in which circumstances contract was made. है C, only parties of the contract may sue it. वो होता है privity of contract। क्या ये applicable है इंडिया में? No, इंडिया में applicable नहीं है। Next 67, अब मैच करना है मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर। अब देखिए जहाँ भी ये कॉमन वर्ड दिखे आपको, दिस मीन्स दे आर रिलेटेड टू मैरिज। और मैरिज में क्या होता है? क्या इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट होता है? नो। वीक वर्सेस ट्राइबल जनरल ऑफर है। हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन रीजनेबल नोटिस है। क्यूरी वर्सेस मीसा कंसिडरेशन पर है। जो मेन डेफिनेशन है कंसिडरेशन की क्यूरी वर्सेस मीसा से ली गई थी।
तो क्या बन गया ये 2143 बी इज द आंसर। नेक्स्ट 68 द वर्ड कंसेंसस एट इडम मीन्स, क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है बताओ, डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है। टू एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 69 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, और फ्रॉड क्या नहीं है। सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, ये फ्रॉड है। एंटायर कंसीलमेंट, ये फ्रॉड है। प्रेजेंटेशन मेड विदाउट नोइंग इट टू बी फॉल्स ऑनेस्टली बिलीविंग इट टू बी, अब ऑनेस्टली जहाँ पर आ गया तो फ्रॉड कैसे हो गया फिर, ये फ्रॉड नहीं है। फिर प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन परफॉर्मिंग, ये भी फ्रॉड है। आंसर क्या रहेगा इसका, सी। डज नॉट पूछा ना, डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। नेक्स्ट 70 राइट टू सू ऑन क्वांटम मेरिट अराइजेज व्हेन अ पार्टी हैज फुली परफॉर्म्ड या फिर पार्टली परफॉर्म, पार्टली परफॉर्म आया। क्वांटम मेरिट क्या होता है, जितना काम किया है उसकी पेमेंट करनी है। व्हेन पार्टी परफॉर्म एंड इज डिस्चार्ज बाय अदर पार्टी, दूसरी पार्टी कहती है नहीं रहने दो, इतना ही कर दो बस। इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके घर में पार्टी है, आपने बोला कि भाई एक मिठाई वाले को आप एक काम कीजिए 100 लड्डुओं के डब्बे मेरे को घर भेज दीजिए। उसने 50 ही बनाए थे, 50 उसने भेज दिए, कह रहा 50 शाम को आएंगे। और उसकी पार्टी में लोग कम आए, कहते हैं 100 रहने दो, 50 बहुत है। तो क्या हुआ, जो 50 दे दिए उसने तो 50 के मिलेंगे, कंटेम मैरियट। नेक्स्ट 71 चेंज ऑफ द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज नोवेशन। डिट्टो क्वेश्चन कहाँ आया हुआ था बताओ, डिट्टो क्वेश्चन ये बता दो, लिखो जरा कमेंट सेक्शन में, मान जाओ कि हाँ जी आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो। नोवेशन कितने में है, 62 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 72 द जुडिशियल बेसिस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, सी इज द आंसर। Next 73 principle of assessment of damages for breach is given in Hadley versus Baxendale, A is the answer। क्वेश्चन कौन सा है, 73। स्कार्फ वर्सेस जार्डाइन है ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है। हाइड वर्सेस रेंच बताया था जनरल ऑफर पर है। नेक्स्ट 74 विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग एजेंसी अंडर इंडियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यस। अथॉरिटी मे बी एक्सपर्ट और इम्प्लाइड, यस, ये भी ठीक है। Consideration is necessary to create agency, no. Consideration is not necessary. Guardian of a minor can appoint an agent for him, yes, ये भी ठीक है। तो एजेंसी में कंसिडरेशन नहीं चाहिए होता, सी इज द आंसर। कहाँ पे मेंशन किया गया है ये, सेक्शन 185 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख लीजिए, डिट्टो लिखा हुआ है कि नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग एन एजेंसी। नेक्स्ट 75 केस ऑफ होचेस्टर डे ला टूर किस पर है ये, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर है, सी इसका आंसर रहेगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। और कौन सा केस है, एवरी वर्सेस बॉर्डन, ये भी एंटिसिपेटरी ब्रीच पर ही है। कौन सा ये पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, क्या पता इस बार ये एवरी वर्सेस बॉर्डन पूछ ले। Next 36 the rule enunciated by section 65 of Indian Contract Act is applicable to agreement which are discovered void by the mistake, failure of consideration, impossibility, all of the above, D is the answer। 65 में क्या रेस्टिट्यूशन, मिस्टेक कंसिडरेशन है तो उसको रेस्टिट्यूट करना पड़ेगा ओरिजिनल पोजीशन पर। नेक्स्ट 37 ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर इवेंट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ए इज द आंसर। भाई कभी एक्सीडेंट होगा तो पैसे मिलेंगे, डेथ होगी तो पैसे मिलेंगे, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर दिया गया, 31 में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 124, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 126 of Contract Act, all right। Next 38 which of the following statement regarding consideration is not correct, it must be given a desire of the promisor, ये बिल्कुल ठीक है। it may be passed also, yes। it need not be adequate to the promise, ये भी ठीक है। consideration जरूरी नहीं है कि adequate हो। stranger to it cannot sue, no they can also sue। केस कौन सा है, चिन्नैया वर्सेस रमैया, केस सुना है ना। Next 53 recession of the contract means cancellation of the contract, B इसका आंसर रहेगा। Next 54 what is the position of contract when it is being caused by mistake of law, it is not voidable, mistake of law is no excuse, ignorantia juris non executat,
2013 का पेपर देखिए, वहाँ पर ये मैक्सिमम आई हुई थी, ठीक है ना? तो नॉट वाइडेबल, ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 21 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहाँ पर मेंशन किया गया है, देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट 55, हु सेड दैट पब्लिक पॉलिसी इज एन अनरूली हॉर्स? ये कहा था लॉर्ड बोरो ने। ये भी रिपीट क्वेश्चन, ये भी किसी पेपर में मैंने देखा है, ये कहीं ना कहीं रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 56, अंडर सेक्शन 182 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड is not an agent of the central government. C is the answer. Next 57, in case of general offer, there is no need to communicate the acceptance if not required by the proposer. This has been held in Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company. A is the answer. जनरल ऑफर का एक ही फेमस केस है, कार्ल वाला ये। नेक्स्ट 81, एन एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड अंडर सेक्शन 27 इज वॉइड। सी इज द आंसर। वॉइड एग्रीमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है? 24 से और 30 तक बताया है मैंने, इसका बनाया भी था, हर बार बताता हूँ। इवन 2016, 2015, 2013 तीनों पेपर में मैंने डिस्कस किया है इसको। CMTLUVW। तो सी से कंसिडरेशन विदाउट एग्रीमेंट वॉइड 25 में है, 26, 27, 28, 29, 30। रेस्टेंट ऑफ मैरिज 26 में, रेस्टेंट ऑफ ट्रेड 27 में, रेस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग 28 में, अनसर्टेन एग्रीमेंट दैट इज 29, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर 30। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, कुछ अपना बना सकते हैं। नेक्स्ट 82, A proposes by letter to sell a house to B at a certain price. The communication of proposal is complete when B receive the letter. ये भी रिपीट क्वेश्चन है, 2018 का पेपर देखिए यूपी का, वहीं मिल जाएगा आपको। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 4 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था ये। देखिए कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है, कब कंप्लीट होगा? कम्युनिकेशन किसको दिया? ए ने दिया है बी को, तो प्रपोजल कब कंप्लीट हुआ? जब बी के नॉलेज में आ गया, बी जब बी ने रिसीव कर लिया लेटर। डी इसका आंसर है। Next 83, A and B enter into a contract due to mistake. That particular debt is time barred. Contract is void. B is the answer. Because both parties has mistake regarding a matter of fact. Section कौन सा लगेगा? 20 of Indian Contract Act. Next 84, a contract of telephone becomes complete at the place where acceptance is heard. In which case it has been held? Bhagwan Das versus Girdhari Lal Kedia Company. A is the answer. Repeat question है 2016 में, देखिए डिट्टो क्वेश्चन पूछा हुआ है। Next at 85, a wagering agreement depends upon the uncertain event. A is the answer. That section 30 अभी डिस्कस किया है, देखिए, है ना। नेक्स्ट 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट? कंसिडरेशन होना चाहिए, वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एडवोकेट कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, इन एडवोकेट भी चल जाएगा। डी इज द आंसर। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडवोकेट, दिस इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। नेक्स्ट 87, कंटिन्यू गारंटी हैज बीन डिफाइंड अंडर 129। डिट्टो क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, एंड छत्तीसगढ़ के 2019 के पेपर में देख ली, वहाँ भी पूछा गया था। तो बहुत ही रिपीट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से जो है पूछते ही रहते हैं। इतने क्वेश्चन कौन बनाएगा? हर साल 150 क्वेश्चन बनाना इज नॉट ईजी, कहीं ना कहीं रिपीट करते ही हैं, किसी ना किसी दूसरे स्टेट से ले लिए क्वेश्चन। 20 का आंसर है। 124 में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट 88, द इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज बीन प्रोवाइडेड इन, कितने में इंटरप्रिटेशन? सेक्शन 2 में। बी इज द आंसर। Next 89, an agreement to do an impossible act in itself is void. D is the answer. Section कौन सा है? 36 of Indian Contract Act. Next 90, A promises to obtain for B an employment in the public service and B promises to pay ₹1,000. The agreement is unlawful. तो क्या हो जाएगा? void. C is the answer. Section कौन सा लगेगा? 23, opposed to public policy. Next 91, state the correct answer. If object of an agreement is forbidden by law, the agreement is void as well as illegal. C is the answer. Section कौन सा लगेगा? 23 again. Next 92, the word illegal is applicable to everything which is an offense prohibited by law, furnishing ground for civil action. All of the above. D is the answer.
क्वेश्चन नंबर 26 है, फॉर एन एक्सेप्टेंस मेयर मेंटल रिजोल्व टू accept would not be sufficient, there must be some external manifestation of the intent by speech, writing or other act. तो कौन सा केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने? ये था भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 27, which one of the following relation does not come within the undue influence relationship? अनड्यू इन्फ्लुएंस की प्रोविजन कहाँ पर है? दैट इन सेक्शन 16 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. डॉक्टर पेशेंट रहेगा, यस. लॉयर क्लाइंट रहेगा, मास्टर सर्वेंट रहेगा. कस्टमर शॉपकीपर नहीं रहेगा. वो ऐसा रिलेशनशिप नहीं कि भी वो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कर ले. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 28, डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल एग्रीमेंट इज दैट ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 29, मैच करना है. तो सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम भंगूर, ये मुगनीराम भंगूर है. ए जो है दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. ठीक है. राज रानी वर्सेस प्रेम अदीब, दिस इज माइनर्स एग्रीमेंट. एंटोर्स कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, हायर वर्सेस फेस इन्विटेशन टू ऑफर. ठीक है. तो ए का है 4-3-2-1. तो 4-3-2-1 है डी में. डी इज द आंसर. Next 30, a stranger to a contract cannot enforce the contract. This is correct. He is not a party to contract and cannot take benefit. Yes. Doctrine of privity of contract. Alright, वो apply होगा. तो A and R both true and R correct explanation. A is the answer. Next 31, damages allowed under section 73 of Indian Contract Act are compensatory damages. ये भूल गया लिखना. B is the answer. पीतल वाले कितने हैं? 74 में. लिक्विड डैमेजेस एंड पेनल्टी की बात की 74 में. नेक्स्ट 32, सेक्शन 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंक्लूड्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी द लॉसेस कॉज्ड बाय ह्यूमन कंडक्ट, एक्सीडेंट एंड नेचुरल कैलामिटी. ह्यूमन कंडक्ट ओनली. ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 33, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग फॉर बी एट अ कॉन्सर्ट एंड गेट्स भी 1000 एज एडवांस ले लिया गाने के लिए. ए इज टू इल टू सिंग. अब मजबूरी भाई नहीं गा पाएगा वो. तो ए इज बाउंड टू सिंग. कैसे गाएगा? नहीं गाएगा. बाउंड टू कंपनसेट बी फॉर लॉस. नो. अगर वो विलफुली करता, विलफुल डिफॉल्ट करता, तब तो कंपनसेट करता एज पर सेक्शन 75 एज मेंशन्ड इट. ठीक है ना. ए इज बाउंड रिटर्न द मनी. अब उसने नहीं गाना गाया तो एडवांस उसको वापस करना पड़ेगा. सी इसका आंसर रहेगा. क्योंकि जो इलनेस है वो उसकी इंड्यूस की हुई नहीं. अगर यहाँ पर मेंशन किया होता कि भी ए ने खुद को बीमार कर लिया या फिर विलफुली उसको अपसेंट कर लिया तो कंपनसेट भी करना पड़ता, उसको एडवांस ही वापस करना पड़ता. दोनों चीज़ होती है इसमें फिर. ठीक है ना. 34, ए ओज बी ₹5,000. A pays to B ₹2,000 and B accepts it in satisfaction of the whole claim on A. Here whole debt is discharge या no debt या फिर part of debt. whole debt होगा discharge. ठीक है ना. A is the answer. सेक्शन कौन सा है ये? 63 and this is illustration B. Next है 35. A contingent contract dependent on the happening of future uncertain event can be enforced even when the event happens. ठीक है ना. तो लिखा डिपेंड अपॉन हैपनिंग. तो हैपन पे होगा. अगर लिखा होता कि ऑन द नॉट हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, कि भाई वो जहाज वापस नहीं आएगा. ये एग्जांपल्स है ना कि भाई किसी एक्सीडेंट हुआ, मान लो कि वो कहता है कि भाई हाँ वो बच जाएगा, तो वो हैपन होगा तब वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. तो सेक्शन कौन सा लगेगा? 32 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ऑलराइट. Next 36, a party who rightfully rescinds the contract is entitled to compensation for his damages. Entitled to compensation आएगा. yes, ये बिल्कुल ठीक है. सेक्शन 75 provides the same. Where a person gives any bond for the performance of any act in which the public is interested, he shall be liable upon its breach to pay the whole sum mentioned therein. ये बिल्कुल ठीक है. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस याद है ना. फिर सी ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कंप्लेनिंग ऑफ द ब्रीच इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी कंपनसेशन फ्रॉम अदर पार्टी इफ नो एक्चुअल डैमेज और लॉस इज प्रूव्ड और हैज बीन कॉज्ड देयरबाय. बिल्कुल ही रॉन्ग है ये. तो बिल्कुल लिखा ना नॉट एंटाइटल. एंटाइटल होगा ना कंप्लेनिंग ब्रीच किसी ने दूसरी पार्टी ने कर दी, अदर पार्टी से क्या एंटाइटल रिसीव कंपनसेशन भी नहीं होगा. ये हो गया रॉन्ग. सेक्शन कौन सा है? 73. ठीक है. तो इनकरेक्ट पूछा हुआ. सी इज द आंसर. अगला देख लेते हैं. द रूल ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस डैमेजेस ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड इन 70 देखिए मेंशन कर दिया ना यहाँ पर. डज नॉट अप्लाई टू वॉइड एग्रीमेंट. बिल्कुल ठीक है ये.
Next 37, a promise to pay debt barred by the law for of limitation has been made enforceable under which section of Indian Contract Act, that is section 25. सेक्शन 25 का कहता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक है, एंड उसकी एक्सेप्शंस लिखी हुई हैं। दिस इज एक्सेप्शन 3, देख लीजिए मिल जाएगा आपको। बट इसमें क्या है कि यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि जो प्रॉमिस टू पे है दैट शुड बी इन राइटिंग और साइन होना चाहिए, ठीक है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब मैच करना है, तो रिव्यू टाइम टेबल क्या है, ये एक जनरल ऑफर है, ठीक है। पब्लिक नोटिफिकेशन ऑफ टेंडर दैट इज इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। पिकिंग अप आर्टिकल फ्रॉम शेल्फ दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस दैट इज ऑल्सो इन्विटेशन टू ऑफर। अब यहाँ पर देखिए ये चौथे का ये बनाएंगे, बट वैसा वर्षा भी हो सकता था। A says to B that if A's offer is not accepted, B should say no immediately. B keep silent. केस कौन सा है, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। Nobody is bound to say anything for acceptance. तो क्या बन गया इसका, ए का है 2, लेकिन 2 एक में ही है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो फिर आंसर भी इसका ए रहेगा 2143, अदरवाइज 2413 भी हो सकता था। नेक्स्ट 39, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वर्ड, सेक्शन 25 बताए अभी, कंसिडरेशन में बी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यस बिल्कुल ठीक है। कहा मेंशन किया कि सेक्शन 2D कंसिडरेशन की डेफिनेशन में ही, तो ए आर बोथ आर ट्रू, बट आर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वर्ड है वो इसकी रीजन की वजह से नहीं है, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी इसका आंसर रहेगा। Next 14, unlawful consideration and object have been mentioned under which section of the Indian Contract Act, that is section 23. D is the answer. 20 में क्या है, mistake when both parties at mistake. 26 मैं बताता ना, CMT love. 25 consideration without agreement, marriage restraint. 26 आ गया ना कि agreement in restraint of marriage. 26 ठीक है ना। 18 क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन। 23 बता ही दिया। क्वेश्चन 51, ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी ₹10,000 टू पे आना चाहिए, टू पे बी ₹10,000 इफ बीज हाउस इज बर्न्ट। द कॉन्ट्रैक्ट इज, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बी इसका आंसर है सेक्शन 31। नेक्स्ट 52, एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इटसेल्फ इज वॉइड, वॉइड होता है ये, सेक्शन कौन सा है, 36 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 53, A for natural love and affection promises to give his son B ₹1,000. A puts his promise to B in writing and registers it. This is a contract, valid contract है, A इसका आंसर रहेगा। And this is exception 1 to section 25. 25 का कहता है an agreement without consideration is void. consideration नहीं है, बट यहाँ पर लव नेचुरल अफेक्शन है, प्लस राइटिंग में है और साइन भी कर दी है, रजिस्टर भी करवा लिया उसको, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और ये रिपीट क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछा गया है, 25 पर इसी एक्सेप्शंस में ही 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 54, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विच केस रिलेट्स टू जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब टू पब्लिक एट लार्ज, तो लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त भी और कार्लिक स्मोक बॉल कंपनी दोनों हैं। ए एंड बी इसका आंसर रहेगा, सी इज द आंसर। Next 55, who said that an offer need not be made to a certain person but no contract can arise until it has been accepted by an ascertained person। देखिए लिखा हुआ कि अगर आप जनरल ऑफर दे रहे हैं तो पब्लिक एट लार्ज, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को तो दे नहीं रहे, लेकिन जो एक्सेप्ट करेगा तो पर्सन आएगा ना। इट वॉज सेड इन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, तो किसने कहा था, लॉर्ड एंसन ने, डी इसका आंसर रहेगा। Next 56, A agrees to pay B ₹1,000 if B will marry to A's daughter C. C was at the time of the agreement. Agreement is void. Subject matter ही नहीं है उस टाइम पर, both parties at mistake है, तो subject matter section है 20, उसमें illustration दिया हुआ, similar illustration है ये। Next 57, फिर से repeat question है ये।
रिपीट क्वेश्चन, माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ऑब्वियसली। सेक्शन कौन सा लगेगा 11 एंड केस कौन सा है मोहरी बीबी, याद है कि नहीं याद है केस। नेक्स्ट 58 सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम भंगूर है ये, मुगनीराम भंगूर इज केस ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन 56 पार्ट 2 पर है ये। नेक्स्ट 59 हेडले वर्सेस बेसेंडेल इज अ केस ऑन डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन 73 से रिलेट करता है केस ये, वहाँ पर देखिए इलस्ट्रेशन भी है, उसमें भी लिखा हुआ है इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट 60 एन एग्रीमेंट एंटर इनटू विद फ्री कंसेंट एंड लॉफुल बट विद इनएडुकेट कंसिडरेशन, देखिए कंसिडरेशन का एडुकेट होना ज़रूरी नहीं है, तो ये जो है एग्रीमेंट लॉफुल है, वैलिड है, यहाँ वैलिड नहीं लिखा हुआ तो लॉफुली लगाएंगे, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 61 वेयर बोथ पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, देखिए सेम पूछ लिया ना। सेक्शन 20 अगेन इट इज एग्रीमेंट इज वॉइड, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 62 न्यूडम पैक्टम मीन्स, न्यूडम पैक्टम मतलब न्यूड मतलब नथिंग, पैक्ट मतलब एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ए इज द आंसर। Next 63 in law of contract bailor in pledge is called as पॉनर, ए इसका आंसर रहेगा। बेली क्या हो गया, पौनी हो गया। सेक्शन कौन सा है ये 172 में प्रोवाइड किया गया है, ये सब बताया गया है वहाँ पर कौन पॉनर कौन पौनी है, प्लेज क्या है। नेक्स्ट 64 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड पॉइंट आउट ऑफ देम विच इज करेक्ट, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, सेक्शन 25 मेंशन करता है। फिर कंसिडरेशन शुड हैव वैल्यू इन आई ऑफ लॉ, यस इट इज करेक्ट। कंसिडरेशन हैज टू बी एडुकेट, नो नीड नॉट टू बी एडुकेट, दो ही ठीक हो इसमें 1 and 2, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 65 A having advanced money to his son B during his minority, B's coming of age obtains by misuse of parental influence a bond from B for greater influence, a bond from B for a greater amount, देखिए यहाँ पे गड़बड़ कर दी इधर, a bond from B for a greater amount than the sum due in respect of the advance, A employs undue influence and this is section 16 where undue influence is provided। क्वेश्चन कितने में 15 में, फ्रॉड कितने में 17 में, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 में। तो सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस का ये है इलस्ट्रेशन ए, ऑलराइट। क्वेश्चन 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ द पार्टीज, यस ये चाहिए है। इसको क्या बोलते हैं, कंसेंसस एड इडम, सुना है ये वर्ड कहीं, मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ द पार्टीज ऑन द सेम सेंस इन द सेम मैनर, मीटिंग ऑफ पार्टीज फॉर सर्चिंग लीगैलिटी ऑफ राइट, नो डिस्कशन कंसिडरेशन, नो डिस्कस प्रपोजल, नो, यहाँ से क्या रहेगा ए। नेक्स्ट 114 पॉइंट आउट द करेक्ट आइटम शोन बिलो, देयर मे बी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, यस, एग्रीमेंट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, यस, parties to the agreement are near relatives, yes, agreement is made due to natural love and affection, yes, तीनों होंगे तभी जो है विदाउट कंसिडरेशन हो जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, डी इसका आंसर रहेगा। एंड दिस इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 25। नेक्स्ट 116 अब केसेस के नाम हैं और मैच करना है। तो काउंटर प्रपोजल मतलब काउंटर ऑफर की बात कर रहे हैं, कौन से केस में आया था, ये था हाइड वर्सेस रेंच में। डैमेजेस फॉर ब्रीच, ये है AKAS जमाल वर्सेस मुला दाऊद। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी वर्सेस श्याम सुंदर। कमर्शियल हार्डशिप, गंगा शरण वर्सेस राम गोपाल। तो आंसर क्या बन गया इसका 3124, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 117 under Indian Contract Act, A promises B to drop prosecution which he has instituted against B for robbery and B promises to restore the value of the things taken, that agreement is void, unlawful है। सेक्शन 23 रिपीट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया 2018 में भी, यूपी में ही। नेक्स्ट 118 एन एजेंट एट टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट डिस्क्लोज नेम एंड एड्रेस ऑफ हिज प्रिंसिपल बट इट कम्स नॉन टू द सेकेंड पार्टी आफ्टरवर्ड्स, इन केस एंड बिफोर द सेकेंड पार्टी में फाइल अ सूट अगेंस्ट दी प्रिंसिपल या फिर एजेंट,
किसको भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, आइदर एजेंट और प्रिंसिपल बोथ। सी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है 231 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 119 अंडर इंडियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसेंसस एट इट मीन्स टू एग्री ऑन द सेम थिंग इन सेम मैनर। अभी बताया था, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, एक ही चीज पर दो क्वेश्चन आ गए हैं, तो आंसर क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट 120 अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इफ द नेचर ऑफ लायबिलिटी इज इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज चेंज्ड इट इज शोन एज नोवेशन। डी इज द आंसर। रिपीट क्वेश्चन है ये, नोवेशन पर हर बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट 121 विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ऑफ पारे डिलिक्टो। व्हाट इज पारे डिलिक्टो, बोथ पार्टीज एट मिस्टेक। ऑल राइट, ओंकार मल वर्सेस बनवारी लाल। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 122 व्हाट इज द रीजनेबल टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ए इज द आंसर। ये कहाँ मेंशन किया गया है, ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 46 की एक्सप्लेनेशन में। ऑल राइट। नेक्स्ट 123 ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टेलीफोन बिकम्स कंप्लीट। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन टेलीफोन आना चाहिए, बिकम्स कंप्लीट वेयर एट द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज हर्ड। ये कौन सा केस में बोला गया था, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल में। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 124 ए lends be 1 lakh to B promised to repay with interest 12% per annum after 1 year. The agreement also provide that if the amount is repaid within 6 months the interest rate will be 10%. The stipulation is valid है तो A is the answer. Next 125 under Indian Contract Act an agreement not enforceable by law is said to be void. Which of the following agreement is not void? तो कौन सा void नहीं है। देखिए वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में लिखा गया है सेक्शन 24 से और 30 तक, ठीक है। एक मैंने इसका बनाया था CMTLUW, CMT लव। C फॉर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड है, ठीक है। विदाउट कंसिडरेशन इन द स्टेट ऑफ मैरिज, रेस्टेंट ऑफ ट्रेड, रेस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अनसर्टेन एंड बाय वे ऑफ वेजर। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है ना। अब देखिए एग्रीमेंट इन स्टैंड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन पूछे तो कितना है 28 है, ट्रेड वाला कितना है 27 है, मैरिज वाला कितना है 26 है। तो एग्रीमेंट अंडर क्वेश्चन सेक्शन 15 में प्रोवाइड किया गया है, तो ये जो है वॉइडेबल होता है, वॉइड नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड, मतलब वॉइडेबल के बारे में पूछ रहे हैं, सी इसका आंसर रहेगा। Next 126 where both the parties to an agreement are under mistake as to matter of fact essential to the agreement। फिर लिखना चाहिए था the agreement is, agreement क्या होगा वो void हो जाएगा, बी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है ये 20 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 127 an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of others it is voidable contract। सेक्शन कौन सा है 2I ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 128 इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट ऑफ डैमेजेस आर गिवन इन हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल, बी इसका आंसर रहेगा। रिवीजन का नहीं है ऑर्डर। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अपोज टू लॉ इज वॉइड। ये बिल्कुल ठीक है। सेक्शन कौन सा है 23 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स दैट पार्टीज मस्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये भी ठीक है, इसका रीजन भी ठीक है ये। तो आंसर क्या रहेगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट 38 मैच करना है फिर से। डोमिनेट्स द विल ऑफ द अदर क्या होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिस क्या देते हैं हम कंसिडरेशन। फिर सी है कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, तो क्या होता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिजेंट क्या होता है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट या फिर फ्यूचर इवेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, टू डू मतलब फ्यूचर में होने वाला है तो कॉन्टिजेंट है। फिर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फ्रॉम फॉर अदर पर्सन, क्वेज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जो। तो आंसर क्या बना ए का बना 3 देखिए एक में ही है, बी इसका आंसर बन गया। Next 39 an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto but not at the option of other or others। तो कौन सा होता है वो होते हैं voidable contracts, सी इसका आंसर रहेगा। कितने में प्रोवाइड किया गया सेक्शन 2I ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 40 which of the following statement is correct।
द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब देखिए एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं, जिसने एक्सेप्ट किया है, तो उसके खिलाफ कब पूरी होगी जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जब वो प्रपोजर की नॉलेज में आएगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। 4 इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा सेक्शन है? 4। तो इसका एक रूल है AKP, ये ध्यान रखिए हमेशा, एक्सेप्टर नॉलेज प्रपोजर, ठीक है। अब अगेंस्ट दी अगर प्रपोजर लिखा होता है यहाँ पे तो क्या होता? व्हेन पुट इन दी ट्रांसमिशन आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर, ठीक है ना, PTA। तो ये इसका रूल आप ध्यान रखिए, तो उससे आप इसी तो आप उससे इस चीज़ को जल्दी से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट 41, फॉलोइंग इज अ केस ऑन प्रोमिसरी एस्टॉपल। तो कौन सा केस है? केदारनाथ भी है, दिल्ली क्लॉथ DCM भी है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? C। नेक्स्ट 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कोर्शन चिक्कम मिराजू चिक्कम संशम्मा, ये थ्रेट टू स्ट्राइक जो है वो कोर्शन है, ये वो वाला केस है। फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये डनलप टायर वाला है। इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस, अलोपी प्रसाद, ये वाला केस है। पब्लिक पॉलिसी, हेडले वैसेंडेल नहीं है, हेडले वैसेंडेल किस पे है? डैमेजेस पर, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा नॉट करेक्टली मैच्ड? D। नेक्स्ट 43, विद रेफरेंस टू फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन which of the following statements are correct? Both render the contract voidable, yes बिल्कुल ठीक है। fraud renders the cause of action in tort for damages, yes ये भी ठीक है। simple misrepresentation is also a tort, no ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1 and 2 only is the answer। Next 44, A promises B to drop prosecution which he has instituted against B for robbery. B promises to restore the value of things taken। तो क्या एग्रीमेंट ये वैलिड है? नो, दिस इज वॉइड, बिकॉज इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल है। C इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा लगेगा इसमें? 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 45, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। परफॉर्मेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी इज नॉट कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, बिल्कुल ठीक है। फॉरबिडेंस टू सू हैज ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यस। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन शुड बी एडवोकेट टू प्रॉमिस, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। All 3 are correct. 1, 2, 3 is the answer. C is the answer. Next 46, Indian Contract Amendment Act 1997, कौन सा सेक्शन अमेंड किया था? 28। 28 क्या है? और agreement in restraint of legal proceedings is void। Next 47, change in the nature of obligation in a contract। अगर in a contract है तो क्या है वो? नोवेशन है। अगर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट होता तो क्या होता? वो ऑल्ट्रेशन होता है। और इन और ऑफ का एक खेल है सारा इस टाइप के क्वेश्चंस में। ऐसे 48, अंडर सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द माइनर इज पर्सनली लायबल या फिर ओनली माइनस प्रॉपर्टी इज लायबल? माइनस प्रॉपर्टी लायबल होगी, माइनर लायबल नहीं रहेगा। B इसका आंसर रहेगा। जैसे 49, कंटिन्यूइंग गारंटी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 129। छत्तीसगढ़ में भी पूछा गया था, ये आप देख सकते हैं 2019 और 2020 की जो वीडियो मैंने बनाई है वहाँ मिल जाएगा आपको। B इसका आंसर है। नेक्स्ट 50, मैच करना है। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन किस पर है? टेलर वर्सेस कार्डवेल। स्पेशल डैमेजेस, हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। एंटिसिपेटरी ब्रीच, चेस्टर वर्सेस डेलाटूर। क्रॉस ऑफर, टिन वर्सेस हॉफमैन। तो A का 1 है देखिए, और B का है 4। आंसर क्या बन गया? 1, 4, 2, 3। A इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एन एग्रीमेंट ऑफ वेजर इज वॉइड। और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ऑलराइट। नेक्स्ट 52, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एम्बॉडीज द रूल ऑफ क्लेटन्स केस रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। तो क्लेटन केस कौन से सेक्शन से रिलेटेड है? देखिए, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स की बात कहाँ पर की गई है? सेक्शन 59 से और 64 तक। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है B, सेक्शन 59। सो फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी एग्जाम पेपर्स हुए हैं यूपी जुडिशियल सर्विसेज में प्री के लॉ के एग्जाम पेपर्स, उसमें आए हुए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कुछ सजेशन हो, एडवाइस हो, कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द एफर्ट्स, काइंडली गिव अ सुपर थैंक्स, मिनिमम स्टार्स फॉर 20। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.
धन्यवाद।